Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos on solid state, coordination compounds, halogen derivatives, then you can click on the I button given above. And today we will continue with the same topic which we have left in the last video, that is the topic number 7, elements of group 16, 17 and 18, and this is a topic from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. So these were the topics to be covered. So we are already done with introduction, occurrence, electronic configuration of elements, atomic and physical properties of elements, anomalous behavior, chemical properties of elements, then allotropy, oxoacids, oxygen and compounds of oxygen, compounds of sulfur, chlorine and compounds of chlorine. And today we are going to deal with interhalogen compounds and uses of helium, neon and argon. So the topic to be covered today is this two. So let's begin with interhalogen compounds. As the word tells us that this is a compound having two halogen atom, that is interhalogen compounds, and both the halogen atom is different. So the word inter is used, correct? So let's see. So first there is a question, can you recall? Which type of bonds do halogen form with other elements? Halogen दूसरों elements के साथ कौन सा bond form करता है? तो halogen forms ionic bond with metal and covalent bond with non-metal. ये याद रखना है आपको. Halogen ionic bond बनाता है metal के साथ, जैसे NaCl, ठीक है, और covalent bond बनाता है non-metal के साथ, जैसे SF5. तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड्स और NaCl हो गया आयोनिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज BrF5 ओबे द ऑक्टेट रूल? तो इसका आंसर है नो. BrF5 ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता. ओके, वो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता क्योंकि ऑक्टेट रूल के लिए चाहिए आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है ब्रोमीन के आउटर ऑर्बिटल में, और इसलिए वो एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है, प्रॉपर ऑक्टेट रूल नहीं होता. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन BrF5? तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1. हमारे पास कितने फ्लोरीन है? 5, तो हो गया -5. Br का हो गया x, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इक्वल टू 0. करेक्ट. Therefore x equals to +5. So oxidation state of bromine is +5. Next, how many electrons do halogen require to complete their octet? तो हैलोजिन है ग्रुप 17 एलिमेंट, और आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में कि हैलोजिन के आउटर ऑर्बिटल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. So halogen need only 1 electron to complete its octet. Next is, what is the shape of ClF3? So ClF3 का शेप होता है T शेप. तो Cl ऐसे रहेगा, F एक इधर और एक इधर. So this is how it looks like, T shape. ठीक है. So this is the question from can you recall. Next, halogen form binary compounds with hydrogen. हैलोजिन बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ. ऑक्सीजन के साथ वो बनाता है ऑक्सा एसिड्स, और हैलोजन के साथ बनाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. याद रखना है. सो हैलोजन फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन, ऑक्सा एसिड्स विथ ऑक्सीजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स विथ हैलोजन. ओके, नाउ वो इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बना पाता है? क्योंकि सारे हैलोजिन्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो वो सारे क्यों पास में आकर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं? क्योंकि सारा हैलोजिन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. सारे हैलोजिन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, और
डिफरेंट होने की वजह से दो और दो से ज़्यादा हैलोजन एटम्स पास आके कॉम्बाइन होके आयोनिक या न्यूट्रल कंपाउंड बना पाते हैं। क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एनायन बन जाता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कैटायन बन जाता है, और इस तरह से वो आयोनिक कंपाउंड बना पाते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड भी। The neutral compound is called as interhalogen compound. So, what is interhalogen compound? An interhalogen compound is a compound formed by combination of atoms of different halogen. Interhalogen compound वो compound है जो form होता है combinations of different halogen atoms से। तो ऐसे हम बोल सकते ClF, यहाँ पे देखो ClF कंबाइन होके क्या बन गया ClF, Br फ्लोरीन कंबाइन होके बन गया BrF3, और इस तरह से दो या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम्स, डिफरेंट हैलोजन एटम्स जब मिलके कंपाउंड बनाते हैं जो न्यूट्रल इन नेचर होता है, वो कंपाउंड न्यूट्रल इन नेचर होता है, तब उसे हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। A given halogen forms an interhalogen compound only with halogen having lesser electronegativity. तो यहाँ पे देखोगे Cl और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है, और इसलिए फ्लोरीन सिर्फ ऐसे वाले हैलोजन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे खुद से कम है। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट वाले ही हैलोजन साथ में आके इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। Now next is use your brain power. क्लोरीन और फ्लोरीन combine to form interhalogen compound. जैसे अभी हमने देखा ClF, यह है क्लोरीन एंड फ्लोरीन combine to form interhalogen compounds. The halide ion will be of chlorine or fluorine. मतलब नेगेटिव आयन X माइनस किसका होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होगा या फ्लोरीन के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन पैर अपनी तरफ पुल करके रखेगा और उसके वजह से जो हैलाइड आयन है वो बनेगा F माइनस। सो हैलाइड आयन किसका रहेगा, फ्लोरीन का, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट, why does fluorine combine with other halogens to form maximum number of fluorides? और आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं, देखो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 3 हैलाइड बना रहा है, खुद क्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी नहीं बना पाता, क्लोरीन आयोडीन के साथ भी नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, क्लोरीन कि ब्रोमीन और आयोडीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए वो इन लोगों के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बना पाता। बट वो फ्लोरीन के साथ 3 बना रहा है, ठीक है। ब्रोमीन भी फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा बना रहा है, क्लोरीन के साथ 2 बना रहा है और इन लोगों के साथ नहीं बना रहा। आयोडीन भी देखो फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा बना रहा है, फिर 2 क्लोरीन के साथ और 1 ब्रोमीन के साथ। इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन बनाता है, फ्लोराइड आयन, दैट इज F माइनस। और इसका क्वेश्चन यही है कि फ्लोरीन आयन सबसे ज़्यादा हैलोजन कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन लोगों से बहुत ज़्यादा, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही फ्लोरीन है, और इसलिए उसको टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखे, और इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड बना पाता है। तो उसका रीज़न क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें कितने हैलोजेंस प्रेजेंट है और उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उसके बेसिस पे 4 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो 4 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं X, X डैश, X, X डैश 3, X, X dash 5 and X, X dash 7. So there are total 4 type of interhalogen compound. X, X dash, X, X dash 3, X, X dash 5 and X, X dash 7. अब X is the halogen having larger size and is electropositive. X मतलब हैलोजन जिसकी साइज लार्जर है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करेगा, ठीक है। X dash is a halogen having smaller size and more electronegative, ठीक है। X डैश कौन से हैलोजन होंगे जिसकी साइज स्मॉल है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा X डैश पे और पॉजिटिव चार्ज होगा X पे,
तो एक्स एक्स डैश का एग्जाम्पल है ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr। तो इसमें आप देख सकते हो ब्रोमीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की साइज छोटी है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव। आप आयोडीन और ब्रोमीन में देख सकते हो ब्रोमीन की साइज छोटी है और आयोडीन की बड़ी, सो आयोडीन इज द एक्स डैश एंड सॉरी ब्रोमीन इज एक्स डैश एंड आयोडीन इज एक्स। तो ब्रोमीन पे होगा माइनस चार्ज और आयोडीन पे होगा पॉजिटिव। तो जो बड़ा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेक्स्ट है एक्स एक्स डैश 3। इसमें आपको ज़्यादातर फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, जैसे ClF3, BrF3, IF3। नेक्स्ट है एक्स एक्स डैश 5, उसमें ClF5, BrF5, I5। और एक्स एक्स डैश 7, तो उसमें है सिर्फ एक ही कंपाउंड IF7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ आयोडीन ही ऐसा है जो 7 फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है, दैट इज IF7। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। Next we move toward the general characteristics of interhalogen compounds. Interhalogen compounds कौन कौन से characteristic दिखाते हैं? So these are as follows. So the first, the compound is considered as the halide of X. ठीक है, compound क्या consider किया जाता है? Halide of X. For example, ClF में halide कौन है? F, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया कंपाउंड कौन सा हो गया? हैलाइड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो हेयर द हैलोजन एटम हैविंग लार्जर साइज इज क्लोरीन, और वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फ्लोरीन है स्मॉल साइज और वो है इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसलिए इस इंटरहैलोजन कंपाउंड का नाम होगा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको आपको पहले लिखना है, तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको आप पहले लिखो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको आपने बाद में लिखना है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में लिखो, तो हो गया मोनोफ्लोराइड। एक ही फ्लोरीन है इसलिए मोनोफ्लोराइड। तो आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। जो भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होगा जिसकी साइज बड़ी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है। जिसकी साइज छोटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बारे में बाद में लिखना है। ठीक है, तो हो गया क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इंटरहैलोजन कंपाउंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जांपल ClF3 में कितने एटम्स है? टोटल 4। और हमेशा याद रखना कोई भी इंटरहैलोजन कंपाउंड ले लो, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा हमेशा इवन ही होंगे। उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा और हमेशा इवन ही होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरमीडिएट बिटवीन दी 2 हैलोजन एटम्स होते हैं। तो सपोज यहाँ पे है, हम बात करेंगे क्लोरीन और फ्लोरीन इंटरहैलोजन कंपाउंड की, तो ClF3 की जो प्रॉपर्टीज है वो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच के प्रॉपर्टीज होंगे, ना वो प्रॉपर्टीज क्लोरीन के होंगे ना फ्लोरीन के, उनके बीच के प्रॉपर्टीज होंगे। तो हमेशा याद रखना प्रॉपर्टीज ऑफ एनी इंटरहैलोजन कंपाउंड इज ऑलवेज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द हैलोजन इट फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल हैलोजन एग्जिबिट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये याद रखना है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +3, +7, ओके, +5। तो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसके दिखाए जाते हैं? सेंट्रल हैलोजन एटम के उस पे। ठीक है, तो सेंट्रल हैलोजन एटम हमेशा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बेस्ड ऑन वो कौन सा इंटरहैलोजन कंपाउंड वो बना रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना, सेंट्रल वाले का होता है +1 या +3, +5 या +7। ठीक है, +1, +3, +5, +7, यही ऑक्सीडेशन स्टेट वो सेंट्रल हैलोजन एटम दिखाता है बेस्ड ऑन दूसरे कितने हैलोजन एटम्स उसको अटैच है। नंबर ऑफ एक्स डैश एटम इज ऑलवेज ऑड, ये याद रखना है। देखो एक्स डैश जो स्मॉल एटम होता है वो हमेशा ऑड होता है, हमेशा 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे होगा। तो एक्स डैश एटम हमेशा ऑड रहेगा, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इवन, एंड दे आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर। इंटरहैलोजन कंपाउंड हमेशा डाईमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन इस तरह से है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में जो भी आप देखोगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब जो साइज में बड़ा है, वो हैलोजन को नाम लिखते वक्त पहले लिखोगे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेक्स्ट लिखोगे। और आपको याद रखना टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में हमेशा और हमेशा इवन होते हैं, बट
एक्स डैश हमेशा और हमेशा ऑड होता है। जो सेंट्रल हैलोजन एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन वो कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हमेशा इंटरमीडिएट बिटवीन द टू हैलोजन एटम्स होते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड हमेशा डाईमैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट question is like this, what will be the names of the following compound ICl and BRF। तो आपने देखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन कौन सा है, तो यहाँ पे आयोडीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए मैं पहले आयोडीन लिखूंगी, तो आयोडीन, और एक ही क्लोरीन है इसलिए मोनोक्लोराइड। नेक्स्ट BRF, BRF में आपने देखना है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑफ कोर्स Br, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है तो ये बन गया ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड। और नेक्स्ट विच हैलोजन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर हैलोजन अटैच, कौन से हैलोजन को सबसे ज़्यादा दूसरा हैलोजन है अटैच है, वो है आयोडीन, क्योंकि वो बनाता है IF7। तो हमने देखा है कि सिर्फ आयोडीन ही ऐसा है जो ये कंपाउंड बनाता है IF7, इसलिए सिर्फ आयोडीन ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर हैलोजन एटम अटैच है और वो कंपाउंड है IF7। Next, which halogen has the tendency to form more number of interhalogen compounds? Yes, fluorine, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाता है। नेक्स्ट ये है यूज योर ब्रेन पावर, विच विल बी मोर रिएक्टिव। अब देखना है आपको ClF3 और ClF, और ये याद रखना है जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और यहाँ पे सिर्फ एक, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो ClF3 इज मोर रिएक्टिव। और सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे इसमें 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच और इसमें एक, इसलिए BrF5 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर रिएक्टिव। अब कंप्लीट द टेबल, तो आपको स्ट्रक्चर और नाम से कंप्लीट करना है टेबल। तो पहला है ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। नेक्स्ट ClF3, तो ऑफ कोर्स क्लोरीन पहले ही होगा और अब हो जाएगा ट्राईफ्लोराइड क्योंकि 3F3 है, करेक्ट। सो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। नेक्स्ट क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, तो क्लोरीन आप लिखोगे और पेंटा मतलब 5, फ्लोराइड मतलब F, ClF5। नेक्स्ट है BrF, सो ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, करेक्ट। फिर ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड मतलब ब्रोमीन, पेंटा मतलब 5, फ्लोराइड मतलब F, सो BrF5। ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड। नेक्स्ट ICl3 आयोडीन ट्राईक्लोराइड। और आई होप ये सब आपको समझ गया होगा, ये इजिली आप नेमिंग कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशंस। सो है पहला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। उसमें क्या करना है आपको, पहले फॉर्म में XX डैश बनाना है। XX डैश मतलब इक्वल नंबर ऑफ हैलोजेंस चाहिए, सो बोथ शुड बी इन इक्वल वॉल्यूम्स। सो Cl2 प्लस F2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2ClF, I2 प्लस Cl2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2ICl, Br2 and Cl2 reacts to form 2BrCl। तो इक्वल वॉल्यूम, क्योंकि आपको इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन चाहिए आपके कंपाउंड में, इसलिए इक्वल वॉल्यूम यूज करोगे। बट आप यहाँ पे देखोगे XX-3 इसमें दोनों भी हैलोजन इक्वल नंबर में नहीं है, इसलिए अभी आपको एक हैलोजन दैट इज X डैश को एक्सेस में यूज करना पड़ेगा। आपको X डैश कैसे यूज करना पड़ेगा, एक्सेस में, क्योंकि आपको ये 3 चाहिए और ये 1। तो आप यहाँ देखो Cl2 प्लस 3F2 गिव्स यू 2ClF3, क्योंकि मुझे फ्लोरीन एक्सेस में चाहिए था इसलिए मैंने फ्लोरीन एक्सेस यूज़ किया। नेक्स्ट Br2 प्लस 3F2 गिव्स 2BrF3, यहाँ पे भी फ्लोरीन मुझे एक्सेस में चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे भी फ्लोरीन एक्सेस यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है I2 3Cl2, एक्सेस क्लोरीन लिया मतलब अब क्लोरीन मुझे एक्सेस में मिलेगा, मतलब मिलेगा 2ICl3। तो इस तरह से आपने जज करना है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। यदि आपको XX डैश प्रिपेयर करना है तो दोनों भी हैलोजन इक्वल प्रोपोर्शन में लीजिए, और यदि आपको XX-3 प्रिपेयर करना है तो एक हैलोजन आपको एक्सेस में लेना है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजन खुद इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ फॉर्म रिएक्ट करके दूसरा वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है। जैसे Br2 रिएक्ट्स विथ BrF3 टू गिव 3BrF, तो बन गया XX डैश। और यहाँ पे देखो Br2 रिएक्ट्स विथ ClF3 टू गिव यू
2BrF3 एंड BrCl। तो यहाँ पे दो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक है XX डैश और एक है XX डैश 3। तो इस तरह से आप एक हैलोजन एटम को दूसरे इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा ही इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल रिएक्शन फॉर ICl। ICl के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है। यहाँ पे ICl के लिए एक रिएक्शन तो हमने देखा है, I2 + Cl2 gives 2ICl, पर दूसरा एक ये रिएक्शन है, I2 reacts with KClO3 to give ICl + KiO3। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन क्योंकि स्पेशल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? पहला है रिएक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें पहला प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे XX डैश का थर्मल स्टेबिलिटी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ClF is the most stable. You have to remember this sequence. There is no trick. So you have to remember that ClF is more stable than ICl, then IBr, then BrCl and BrF. तो ClF is more stable than and least stable is BrF. Next is hydrolysis gives oxoacid. तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब जब आप इंटर हैलोजन कंपाउंड को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तब आपको हमेशा और हमेशा मिलेगा ऑक्सा एसिड। तो देखो BrCl रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HOBr + Cl, ICl reacts with water to give HiO3 + 5HCl. That is, you get oxo acids like HOBr and HiO3 when you react water with the monohalogen interhalogen compounds. But when you react your water with ICl3, तब आपको मिलता है ICl, ठीक है, तो और ऑक्सा एसिड HiO3। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कभी भी कौन सा भी इंटर हैलोजन कंपाउंड X डैश या XX डैश 3 में रिएक्ट कर दूँ वाटर के साथ या उसका हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करना मतलब हाइड्रोलिसिस करना, तो जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तब मुझे हमेशा और हमेशा मिलेगा ऑक्सा एसिड। नेक्स्ट है डिसप्रोपोर्शनेट ऑटोनाइजेशन, मतलब उसको ब्रेकिंग, ठीक है। तो BrF अब रिएक्ट होके बन जाता है Br2 + BrF3, ठीक है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जिससे वो बना है उससे ही ब्रेक करके वापस वही दे देता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे BrF बना था, ठीक है, Br2 + BrF3 के साथ रिएक्ट करके। अब इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, BrF gives 2Br2 + BrF5। नेक्स्ट 2ClF3 gives ClF2 positive + ClF4 negative और ICl3 gives ICl + Cl2। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस आपने लिखे हैं जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट फॉर फ्लोरिनेशन, तो XX डैश डज नॉट अंडरगो फ्लोरिनेशन बट XX डैश 3 अंडरगोज। सो देखो यूरेनियम + ClF3 रिएक्ट्स टू गिव UF6 + ClF। तो ये हो गया फ्लोरिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एडिशन अक्रॉस ओलिफिन्स। सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं और वो एडिशन करते हैं ओलिफिन्स के अक्रॉस और उसको बना देते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो I और Cl यहाँ पे एक कार्बन को अटैच होगा, दूसरा वाला दूसरे कार्बन को, और ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो इट इज एडिशन अक्रॉस दी ओलिफिन्स, ओलिफिन्स मतलब अल्कीन्स। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस, तो पहला है XX डैश। तो XX डैश यूज होता है ICl इज यूज टू डिटरमाइन आयोडीन वॉल्यूम ऑफ ऑयल्स। सो ऑयल्स में आयोडीन प्रेजेंट होता है तो उसको डिटरमाइन करना पड़ता है हर ऑयल इंडस्ट्री को या लैब्स में। तो कौन सा हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड यूज करेंगे, ICl। तो हमें बताएगा आयोडीन वॉल्यूम ऑफ value of oils. Next, XX dash is used as catalyst for oxidation of AS in +3 oxidation state. तो आपको AS +3 को ऑक्सीडाइज करना है तो आप XX dash यूज कर सकते हो। XX dash even is used for preparation of polyhalides. polyhalides के लिए आप ये वाला XX dash यूज कर पाओगे।
नेक्स्ट है XX-3। XX-3 इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स, दोनों जगह आप ये लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स। फिर इट इज़ यूज फॉर फ्लोरोरेटिंग एजेंट, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको याद है होगा ClF3 होता है, IF3 होता है, तो फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है XX3 में, इसलिए फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। और इट इज़ ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सो दे आर यूज्ड इन मेनी रिएक्शंस वेयर यू नीड नॉन एक्वस solvent. So this is the uses of interhalogen compounds. Next is structures of interhalogen compound, and this is the most important part from the point of view of your exam. Most important, क्योंकि इस पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो structures of interhalogen compound में पहला है ICl, तो उसका नाम होता है आयोडीन मोनोक्लोराइड, बिकॉज आयोडीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आयोडीन मोनोक्लोराइड। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से एकदम लीनियर, एकदम स्ट्रेट, ClICl, और ये आप देख सकते हो स्ट्रेट है इसलिए इसका शेप हो गया लीनियर। ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर एंड शेप्स, क्योंकि MCQs या 1 लाइन आंसर में आ सकता है। नेक्स्ट है ClF3, तो हमने एकदम स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में ही देखा है। ClF3 का स्ट्रक्चर है T शेप, और उसका नाम है क्लोराइड ट्राइफ्लोराइड, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो क्लोराइड ट्राइफ्लोराइड। एंड ये हो गया, ये एक्चुअली क्लोरीन चाहिए, यहाँ पे उन्होंने ना टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, तो आपने लिखना है यहाँ पे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। और उसका स्ट्रक्चर होता है T शेप, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर याद रखना है तो बेंड T शेप, और प्रॉपर T शेप का नहीं होता, सब बेंड रहता है थोड़ा सा, इसलिए उसको बोलते हैं बेंड T शेप। नेक्स्ट है BrF3, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है Br, सो ये हो गया ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, और आप इसका स्ट्रक्चर देख लो ऐसा है, मतलब ये वापस बेंड T शेप। नेक्स्ट है BrF5, ये हो गया ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, Br के प्लेन में 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन नीचे और लोन पेयर ऊपर, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है और यहाँ पे एक पिरामिड, तो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है ClF5, तो ये हो गया क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की तरह ही, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। और इस तरह से आप सारे स्ट्रक्चर्स याद रखो, 4 से 5 स्ट्रक्चर से लर्न करने के लिए उनके नाम और स्ट्रक्चर और शेप उतना याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो IF7, उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7। सो एक ही इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो +7 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है IF7, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ आयोडीन 0 होते हैं। नेक्स्ट है ClF5, BrF5, IF5, मतलब फ्लोरीन 5 इन नंबर, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस Cl, Br एंड आयोडीन होता है +5, क्योंकि फ्लोरीन का -1 होता है, इसलिए अभी इसको न्यूट्रल रखना है, तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देना पड़ेगा +5, और लोन पेयर कितने होते हैं, 1। नेक्स्ट है ClF3, BrF3, IF3, I2Cl3, ये डायटॉमिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन के, Br के और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और लोन पेयर है 2। नेक्स्ट है ClF, BrF, IF, BrCl, ICl, IBr, तो आप देख सकते हो इन लोग के साथ एक एक ही दूसरा हैलोजन प्रेजेंट है, और दूसरे हैलोजन पे -1 चार्ज है, इसलिए खुद Cl, Br, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे होगा +1 चार्ज, और उनके पास लोन पेयर है 3। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना है, जस्ट इट इज ट्रिक। आयोडीन 7 है, फ्लोरीन 7 है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे 5 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और यहाँ पे 1 है ऑक्सीडेशन स्टेट +1। +7 के लिए लोन पेयर 0, 5 के लिए 1, 3 के लिए 2 और 1 के लिए 3। इस ट्रिक से आप ये पूरा टेबल याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ जियोन। सो जियोन के कंपाउंड्स देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी और एलिमेंट की रिएक्टिविटी में क्या कोरिलेशन है, तो ये है कि हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी लेस रिएक्टिव द एलिमेंट इज। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब
आउटर ऑर्बिटल में से, ये ऑर्बिटल है उसके आउटर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी हमको, उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी, तो सपोज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, करेक्ट, ये याद रखना है कोरिलेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे जाते वक्त हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होती है, तो ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रुप के नीचे जब हम जाते हैं तब साइज इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप में सपोज इलेक्ट्रॉन बहुत पास है न्यूक्लियस के, और लास्ट जो ग्रुप में एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट एलिमेंट ग्रुप के वो दूर है न्यूक्लियस से, बट फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत पास में है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, बट इस केस में वो होल्ड नहीं करके रखेगा, तो इसलिए हम इसे बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, बहुत ईजिली ये निकल जाएगा, बट इस केस में वो इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इजीली नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बट यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि ये इजीली निकल जाएगा। तो जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, group 18 elements have very high ionization energy and hence they are less reactive। हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी जब हाई होती है रिएक्टिविटी लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ग्रुप 18 एलिमेंट में ये क्यों है, क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है, वो नोबल गैस है, और इसलिए वो अपने ऑक्टेट जब वो बहुत ही स्टेबल है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इतना स्टेबल है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता। वो क्यों अनस्टेबल बनेगा ना, जब बहुत हाईली स्टेबल है क्यों अनस्टेबल बनेगा अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के, इसलिए वो हाई उसका आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब उसमें से यदि आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही हाईली स्टेबल है, और इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। Each noble gas atom has completely filled valence electron shell which makes it inert। तो एग्जाम में सपोज वन लाइन आंसर आया कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स का हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है, क्योंकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है और इसलिए वो इनर्ट है और लेस रिएक्टिव है। बट जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है डिक्रीज। मैंने पिछले इसमें बताया कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और इसके लिए सम ऑफ द नोबल गैसेस लाइक क्रिप्टॉन, जियोन एंड रेनॉन आपको बहुत लो आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाते हैं और कुछ कंपाउंड्स बना पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज नोबल गैसेस जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जल्दी किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, बट जो लार्जर साइज ऑफ नोबल गैसेस हैं उनके आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी लो होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं, इसलिए वो रिएक्टिव हो जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स वो बना पाते हैं। तो पहला हम देखेंगे जियोन फ्लोराइड्स, इसका प्रिपरेशन। सो जियोन फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ जियोन एंड फ्लोराइड, ठीक है। जियोन और फ्लोराइड को डायरेक्ट रिएक्ट करके बनता है जियोन फ्लोराइड, और आप डिफरेंट रेशियो लोगे तो आपको डिफरेंट जियोन फ्लोराइड्स मिलेंगे। डिफरेंट कंडीशन भी रखना है आपको, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फोटोकेमिकल, ये सब रिएक्शन कंडीशन आप डिफरेंट रखो। जियोन और फ्लोरीन के जो रेशियोज डिफरेंट रखो तो आपको डिफरेंट जियोन फ्लोराइड्स मिलेंगे। जैसे Xc+F2 विल हीट और निकल ट्यूब में तो आपको मिलेगा XCF2 इन द रेशियो ऑफ 1:5 में आप हीट करोगे तो मिलेगा आपको XCF4। Xc2F2 जब आप करोगे तो मिलेगा XCF4। Xc3F2 को रिएक्ट करोगे तो मिलेगा XCF6। तो आप Xc और फ्लोरीन का रेशियो डिफरेंट रखोगे तो आपको डिफरेंट जियोन फ्लोराइड्स मिल रहे हैं, और रिएक्शन कंडीशन भी आपको डिफरेंट रखने हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ XCF2। XCF2 कौन कौन से केमिकल रिएक्शन दिखाता है? पहला है हाइड्रोलिसिस। तो XCF2 रिएक्ट्स विद वाटर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जब भी आए आपको याद रखना है कि उस रिएक्शन में आपको वाटर ऐड करना है। तो XCF2 जब हाइड्रोलिसिस या रिएक्ट विद वाटर वो फॉर्म करता है HF, दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो XCF2 रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HF।
नेक्स्ट रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो HCF2 जब PF5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है उसका एक एडक्ट, मतलब दोनों कॉम्बाइन होके एक सॉलिड मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है HCF2 रिएक्ट कर रहा है PF5 के साथ और बना रहा है HCF2 प्लस PF5 और इसे हम कहते हैं एडक्ट, एक सॉलिड मटेरियल जिसका कोई नाम नहीं है तो इट इज अ एडक्ट, ओके। नेक्स्ट है जियोन ट्राई आयोडाइड ऑक्साइड का रिएक्शन, जियोन ट्राइऑक्साइड। सो प्रिपरेशन ऑफ जियोन ट्राइऑक्साइड दैट इज XeO3। सो फ्लोराइड ऑफ जियोन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म XeO3, ठीक है। फ्लोराइड ऑफ जियोन रिएक्ट करता है पानी के साथ बनाने के लिए XeO3। सो XeF4 रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू Xe प्लस XeO3 प्लस 12HF, या फिर XeF6 reacts with water to give you XeO3। नेक्स्ट है ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जियोन, तो जियोन फॉर्म्स वेरियस ऑक्सीफ्लोराइड्स लाइक XeOF2, XeO2F2, XeO3F2, XeO2F4। तो आप देख सकते हो Xe और F2 तो कांस्टेंट है ये तीनों में, जस्ट आपको ऑक्सीजन इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपको फ्लोरीन का नंबर इंक्रीज करना है। इस तरह से आप याद रख सकते हो ये। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये आपके अभी तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर्स। तो ये हुआ पहला XeF2, यहाँ पे Xe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 और इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। तो यहाँ पे है Xe और यहाँ पे है आपके 2 फ्लोरीन और ये लोन पेयर्स, तो ये स्ट्रक्चर हो गया लीनियर, यहाँ पे Xe और यहाँ पे 2 फ्लोरीन। नेक्स्ट है XeF4, यहाँ पे Xe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4 क्योंकि 4 फ्लोरीन है, 4 नेगेटिव चार्ज और ये होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे हुआ Xe और 4 फ्लोरीन आपके 4 प्लेन में, ऊपर और नीचे लोन पेयर ऑफ Xe। नेक्स्ट है XeF6, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ Xe +6 और ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। तो आपने देखा है जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हमने ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्टाहाइड्रल करना है, सिर्फ एक जो बॉन्ड है उसको थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर फिट करना है, इसलिए इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ा सा तिरछा। नेक्स्ट है XeO3 दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xe इज +6 और इस केस में हो जाता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल NH3 की तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे Xe है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे लोन पेयर, तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये पिरामिड की तरह है, करेक्ट, ये पिरामिड की तरह है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है XeOF4, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xe है +6 और ये है स्क्वायर पिरामिडल। तो आप देख सकते हो ये आपका एक Xe है, ये 4 फ्लोरीन और ये 5वां, तो ये हुआ पिरामिड की तरह और ये स्क्वायर केस में है इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऑफ जियोन याद रखना है। नेक्स्ट है द मिसिंग एंट्रीज। सो XeOF2 का नाम है जियोन मोनोऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है, जियोन मोनोऑक्सीफ्लोराइड। नेक्स्ट है जियोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा जियोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। यहाँ पे मोनोऑक्सीफ्लोराइड था तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों भी मोनो थे, बट यहाँ है जियोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड दैट इज XeO2F2। ना XeO3F2 का होगा जियोन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, जियोन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट है XeO2F4 का होगा जियोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो यहाँ पे भी उस हिसाब से आपको एक करेक्शन करना है, टेक्स्ट बुक में ये शायद गलत ही दिया है, तो ये है जियोन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड क्योंकि फ्लोराइड आयन 2 है, करेक्ट, फ्लोराइड आयन 2 है इसलिए होगा डाइफ्लोराइड, जियोन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये गलत दिया है, आप करेक्ट कर लो टेक्स्ट बुक में और ये हो जाएगा जियोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये है जियोन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये जियोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट है यूजेस। तो पहला हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हीलियम। तो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड O2 इज यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट। जो अस्थमा पेशेंट के पास एक पंप होता है, देखो आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में या फिर सीरियल्स में कि एक
अस्थमा पेशेंट होता है उसका पंप होता है, उस पंप में क्या रहता है, हीलियम प्लस O2। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड O2 इज यूज फॉर रिस्पिरेशन बाय सी ड्राइवर्स। जो सी ड्राइवर्स जो सी के अंदर जाते हैं, जो समुद्र की खोज करने सी के अंदर घुसते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है, करेक्ट, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड O2 होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग ऑफ बलून्स। आपने देखा होगा कुछ बलून्स जो आप मार्केट से खरीदते हो, वो डायरेक्ट आप घर पे लाओगे, हाथ से छोड़ोगे, डायरेक्ट वो ऊपर दीवार में जाके ऊपर लग जाता है, क्योंकि हीलियम जो लाइटर गैस है, ठीक है, तो उसमें होता है हीलियम प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन उस वाले बलून्स में। जो घर में आप बलून फुलाओगे वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाता, हमेशा याद रखना, वो नीचे ही कहीं तो पड़ा रहेगा। पर जब आप दुकान से खरीद के वो वाला जो सिलेंडर से भरते हैं वो बलून वाले, वो बलून लाओगे तो घर पे लाते आप छोड़ोगे तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, वो नीचे नहीं रहता कभी वो बलून। क्यों? क्योंकि उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत लाइट गैसेज है, इसलिए ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट है हीलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमोस्फियर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस एंड मेटलर्जी ऑफ सम एलिमेंट्स। सो बिल्डिंग के लिए और मेटलर्जी के लिए हम लोग को इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उस इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हीलियम को। लिक्विड हीलियम यूज होता है प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च, ठीक है, तो रिसर्च के लिए हम लोग को लो टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लिक्विड हीलियम। इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर। सो प्रोडक्शन ऑफ लेजर के लिए भी हम लोग हीलियम यूज कर सकते हैं। यूज टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स ऑफ लिक्विड फ्यूएल्ड रॉकेट्स, ठीक है, जिसमें लिक्विड फ्यूएल्ड रॉकेट्स होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं, उसमें भी टैंक को प्रेशराइज करने के लिए और जो हमने सिलेंडर में गैस भरा है उसको लिक्विड में रखने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर शील्डिंग गैस फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए शील्डिंग गैस की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर सुपरसोनिक विंड टनल्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। हीलियम न्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर एज अ बोम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, तो न्यूक्लियर जो एनर्जी न्यूक्लियर इसमें है वो इंटीग्रेशन एटम्स करने के लिए या एटम्स को ब्रेक करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर नियॉन। इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प्स एंड साइंस, तो डिस्चार्ज लैम्प्स होते हैं जो रिसर्च और लैबोरेटरी में पाए जाते हैं, उसमें नियॉन का यूज़ किया जाता है। फिर ये साइंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दिस साइंस आर विजिबल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल्सो इन मिस्ट और फॉग। तो आपने ना बहुत बार हाईवेज पे या रास्ते में देखा होगा येलो कलर की या रेड कलर की जो चमकदार पट्टियाँ होती हैं जो बहुत दूर से भी चमकती हैं, बहुत दूर से भी दिखती हैं, रेलवे स्टेशन पे भी ये बहुत दूर से भी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और आप जब पास जाओगे तो नॉर्मल है, पर दूर से आप देखोगे वो चमक रही हैं, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, नियॉन का। तो स्पेशली साइंस और साइन बोर्ड के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस से जो अंधेरे में भी, जो फॉग में भी, मिस्ट में भी दिख जाए, उसके लिए यूज़ किया जाता है नियॉन का। मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हीलियम इज यूज फॉर प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए मिक्सचर ऑफ हीलियम और नियॉन यूज़ किया जाता है, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर और करंट रिफ्रैक्टिव में भी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेज़र, नियॉन का लेज़र के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी। कुछ ट्यूब्स आते हैं जिनको चमक होती है, जो लाइट पास करते हैं, उसके लिए भी नियॉन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नियॉन में वो प्रॉपर्टी है कि वो दूर से भी चमकता है और विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गॉन। तो आर्गॉन इज अ इनर्ट एटमोस्फियर, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमोस्फियर इन वेल्डिंग एंड स्टील प्रोडक्शन। तो सेम एज द हीलियम, आर्गॉन भी इनर्ट एटमोस्फियर के लिए यूज़ किया जाता है। मिक्सचर ऑफ आर्गॉन एंड नाइट्रोजन इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब घर में लाते हो उसमें एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट यदि एक्टिव रहे तो ही वो बल्ब जलेगा, नहीं तो वो फिलामेंट खराब हो जाता है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। और फिलामेंट को एक्टिव रखने के लिए कि वो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो जाए एयर के साथ रिएक्ट करके, तो उसके लिए उसमें आर्गॉन और नाइट्रोजन का मिक्सचर करके उसमें फिल किया जाता है उस बल्ब में, कि फिलामेंट इनर्ट एटमोस्फेयर में रहे और जल्दी रिएक्ट ना हो और उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो बल्ब्स, ठीक है, आर्गॉन को फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ मिक्सड विथ नियॉन टू गेट लाइट्स ऑफ वेरियस कलर। आर्गॉन और नियॉन का वेरियस प्रोपोर्शन आप यदि मिक्स करोगे आपको वेरियस कलर की लाइट्स मिलेंगी। तो स्पेशली वो यूज़ किया जाता है वो वाले बल्ब्स में जिसमें वेरियस कलर्स निकलते हैं लाइट के, तो उसमें आर्गॉन और नियॉन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। सो
actually we end here with our chapter number 7 of Maharashtra State Board, and that's all for today. Thank you. You can ask any doubt, any comment, any suggestion on your askyadoubts04@gmail.com. If you have liked my videos, please give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends so that I can make better videos for you. And if you have liked my video, you can even write in the comment box. So that's all for today. But before departing, focus on where you want to go, not on what you fear. जहाँ आपको जाना है, जो आपकी मंजिल, उस पर आप ध्यान दो, ना कि जिससे आपको डर लगता है. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.